Hello, welcome back to our SK1 nursing classes. Today we are here to discuss or take a quick review about insulin and oral hypoglycemic agents. So let's start the topic. First, let's discuss about what is hypoglycemia. Hypoglycemia and the hyperglycemia. Hypoglycemia is termed as low blood glucose or blood sugar. When blood sugar is below 70 gram per dl, it is termed as hypoglycemia. Hyperglycemia is derived on the described on the basis of two samples, random blood samples and the fasting blood sample. When in random, 140 above 150 40 mg per dl above is termed as hyperglycemia, and for diabetes it will be up to the 200 mg per dl, and for fasting blood sample it will be the 100 mg per dl, greater than the 100 mg per dl. To One thing is there, hypoglycemia, not hyperglycemia. Drugs used to treat hyperglycemia, also known as anti-diabetic drugs. Okay, so next, hypoglycemic agents. Hypoglycemic agent is classified into two categories on the basis of route of administration. So, parenteral hypoglycemic agents are insulin. Insulin is further classified into rapid acting, slow acting, intermediate acting, and the long acting insulin. And oral hypoglycemic are classified into the further categories. We will discuss about later about oral hypoglycemic agents. So parenteral hypoglycemic agents, main parenteral hypoglycemic agent is insulin. Okay, insulin classification depends rapid insulin, rapid acting insulin, short acting insulin, intermediate acting insulin, and long acting insulin, and combination therapy. Based on their onset and the peak time, they are classified into categories or name like rapid, short, intermediate. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज मेनली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे है कि 3 to 4 आवर रहता है, इसलिए रैपिड एक्टिंग होता है. और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन क्यों कहा गया? क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो 24+ आवर होता है. लास्ट कैटेगरी इज कॉम्बिनेशन थेरेपी. कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या होता है कि टू एनी कैटेगरीज लाइक रैपिड इंसुलिन एंड शॉर्ट इंसुलिन, और आइदर रैपिड और शॉर्ट और इंटरमीडिएट और शॉर्ट विल बी given together to the patient or the person, is known as combination therapy. So, mnemonics for remembering the drugs of insulin classifications are as follow. Rapid acting insulin. Rapid acting insulin, Lispro, Aspart, and Glulicin. Rapid mnemonics is rapid insulin. Sorry, rapid insulin, do not lag. L for Lispro, S A for Aspart, and G for Glulicin. And short for short acting regulars are short. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज रेगुलर, जिसमें ह्यूमिलिन एन आता है, नोवोलिन आर आता है. इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन mnemonics is intermediate is not particularly hasty. NPH is the common intermediate acting insulin. And for a long acting insulin, god damn 24 hour is a long time. God damn 24 hour is a long time, as G suggested for the glargine and D suggested for the DTMate. Okay, so for long acting insulin, mnemonics is the god damn 24 hour is a long time. 24 hour is the duration of the long acting insulin. So, for discussing about oral hypoglycemic agents. Oral hypoglycemic agent is classified into insulin secretagogues and insulin sensitizer. The term secretagogues means which enhance the secretion of the insulin. Okay, which increase the secretion of the insulin or production of the insulin. On the other hand, insulin sensitizer is termed for those drug who reduce or overcome the insulin resistance. Okay. Under insulin secretagogues, sulfonylurea and meglitinides analogs are classified, and under insulin sensitizer, bioguanides and thiazolidinediones are classified. And last category is glucosidase inhibitor, alpha glucosidase inhibitor, and one more is the DPP4 inhibitors, dipeptidyl peptidase inhibitors. Two classification is for the inhibiting the absorption of the carbohydrate from the intestine. Okay, so firstly we have discussed about the insulin secretagogues. Insulin secretagogues
is sulfonyl. First is sulfonyl urea. Sulfonyl urea is mechanism of action of sulfonyl urea is sulfonyl urea binds with the beta cell receptor. Beta cell receptor. Sulfonyl urea is bind with the beta cell receptor and block the sulfonyl urea bind करता है beta cell receptor से और block करता है किसको, पोटेशियम चैनल को, जो कि एटीपी सेंसिटिव होता है. ओके तो एटीपी सेंसिटिव होता है. उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम चैनल का ओपनिंग होता है. अब कैल्शियम चैनल किसी भी चीज़ का ओपनिंग होगा तो वहाँ से इन्फ्लक्स होता है, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स इंक्रीज होता है जिसके किसके चलते, कैल्शियम चैनल के ओपनिंग की वजह से. उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है कि डीपोलराइजेशन करता है, और जो कि डीपोलराइजेशन की वजह से इंसुलिन एक्शन का जो होता है पोटेंशिएशन होता है. पोटेंशिएशन मीन्स द इन्हांसमेंट ऑफ द इंसुलिन एक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस इन द ब्लड ग्लूकोज एंड ग्लूकागोन लेवल, यानी कि जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है उसको ट्रीट किया जाता है और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल पे आता है. अब साइड इफेक्ट्स ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया आर लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोग्लाइसीमिया. लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोग्लाइसीमिया. ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया कराने के लिए ही तो ले रहे हैं, नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया कराने के लिए नहीं लेते हैं. ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने के लिए एंटी डायबिटिक ड्रग्स और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट दिया जाता है. तो इसमें क्या है कि अगर ओवर द काउंटर ड्रग यूज कर रहे हैं या फिर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, जो भी है प्रिस्क्रिप्शन का यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होगा उसमें प्रॉपर टाइम, प्रॉपर फ्रिक्वेंसी, प्रॉपर डोजेज रिटर्न होंगी, मेंशन्ड होता है. ओवर द काउंटर ड्रग में कोई रेजिमे नहीं होता, जिसकी वजह से वो एज अ साइड इफेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. वेट गेन होता है, एल्कोहल इंटॉलरेंस जिसको डाइसल्फिराम भी कहते हैं, एग्रेनुलोसाइटोसिस, एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, एंड डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस. ओके फॉर द कंट्राइंडिकेशन दैट मीन्स किसके लिए किसको हम लोग नहीं दे सकते हैं कंट्राइंडिकेशन में. तो कंट्राइंडिकेशन हेपेटिक और रिनल फेलियर वाले होते हैं, जिनके भी जो भी पेशेंट को हेपेटिक और रिनल फेलियर है या फिर क्रॉनिक रिनल और हेपेटिक डिजीज है, डिसफंक्शन है, उनको हम लोग सल्फोनामाइड्स नहीं देते हैं. और जिनको सल्फोनामाइड्स एलर्जीज हैं, ओबीज पेशेंट को हम लोग नहीं देते हैं बिकॉज इसका साइड इफेक्ट है वेट गेन के लिए. ठीक है. एंड सीवियर कार्डियोवास्कुलर कोमॉर्बिडिटी, मतलब कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवास्कुलर कोमॉर्बिडिटी है तो वहाँ पे सल्फोनामाइड्स नहीं देते हैं. सो नेक्स्ट कैटेगरी वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्लेटिनाइड्स. मैग्लेटिनाइड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है सल्फोनाइल यूरिया के जैसा ही मैग्लेटिनाइड्स एनालॉग का भी. लाइक सी जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होता है उसके साथ जाके बाइंड करता है और इंसुलिन के सेक्रेशन को प्रमोट करता है और एक्शन को पोटेंशिएट करता है. ऑनसेट ड्यूरेशन जो होता है सल्फोनाइल यूरिया से कम होता है, इसलिए मैग्लेटिनाइड्स ज़्यादा प्रीफर किया जाता है. पर्टिकुलरली जो होता है किसमें इफेक्टिव होता है, पैरानिडल एंड पोस्ट पैरानिडल रिलीज ऑफ द इंसुलिन. ओके सॉरी, यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ ओरल एजेंट्स, अदर ओरल एजेंट्स, जितने भी अदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन में यूज होता है. कॉम्बिनेशन में यूज होने से क्या होता है कि एक बेटर कंट्रोल मिलता है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिलता है, मोनोथेरेपी नहीं चलता है मैग्लेटिनाइड्स का. So side effect and contraindication is same as the sulfonylurea. Next category of the drug we will discuss about the thiazolidinediones. Thiazolidinediones is a type of insulin sensitizer which overcome the insulin resistance. Okay, thiazolidinediones क्या करता है कि skeletal muscles, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि जितने भी एडिपोज टिश्यू है ना उनमें क्या करता है कि एडिपोजेनेसिस मतलब कि एडिपोज टिश्यू फॉर्मेशन का या फिर एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन. ठीक है. उसमें क्या होता है कि फैटी एसिड अपटेक को इंक्रीज कर देता है, लिपोजेनेसिस को इंक्रीज कर देता है और ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा में जो फ्री फैटी एसिड मूव करते रहते हैं और प्रेजेंट होता है ना, उनका अमाउंट कम हो जाता है. और उनका अमाउंट जब कम होता है तो इसका असर स्केलेटल मसल्स एंड लीवर पे जाता है. स्केलेटल मसल में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा और इधर लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होने से क्या होगा कि नए तरीके से या फिर जो भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है लीवर के द्वारा वो रुक जाएगा. ठीक है. और जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करने में वो रुक जाएगा. और दूसरा क्या है कि अपटेक हो जा रहा है स्केलेटल मसल्स के द्वारा, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जितने भी ब्लड में ग्लूकोज है उनका यूज करेगा स्केलेटल मसल. तो ये कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने में और इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने में. Side effect of the thiazolidinediones are mild to moderate edema, weight gain, myalgia that is muscle pain, hepatotoxicity and contraindications. किसको
नहीं दे सकते हैं थायाजोलिडिनोडियोन्स। हाइपर सेंसिटिविटी, किसी को एलर्जिक रिएक्शन है थायाजोलिडिनोडियोन्स ड्रग से, या फिर हेपेटिक डिजीज से, किसी हेपेटिक डिजीज है किसी तरह का, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को हम लोग थायाजोलिडिनोडियोन्स ड्रग्स नहीं देते हैं। Next category is biovinoids. Biovinoids is also a insulin sensitizer. Okay, ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट जो इसका होता है वो क्या करता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको कम करता है, इनिबिट करता है, और ग्लूकागोन के एक्शन को भी सप्रेस करता है, अपोज करता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि मेटफॉर्मिन क्या होता है, मोस्ट कॉमन ड्रग होता है, मोस्ट कॉमन ड्रग है, और मोस्ट फेमस ड्रग एंड मोस्ट कॉमन ड्रग है मेटफॉर्मिन, also known as euglycemic drug. Okay, remember that metformin is also known as euglycemic drug. Okay, now mechanism of action of the metformin or the biovinoids. In while acting on the liver, it decrease gluconeogenesis. What is gluconeogenesis? Formation of glucose from the non-carbohydrate sources like fat, protein, etc. and inhibit glycogenolysis. What is glycogenolysis? The breakdown of the stored glucose in the liver as glycogen. Okay, and fatty acid oxidation को भी कम कर देता है. On the other hand, in skeletal muscles में इंसुलिन के एक्शन के इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लूकोज का अपटेक होता है वहाँ इंक्रीज हो जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस इंक्रीज होता है. व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में पड़े रहते हैं, सॉरी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में पड़े रहते हैं या फिर प्रेजेंट हैं, उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करवा देता है. ओके, एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को भी इंक्रीज करता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को भी डिक्रीज करता है, सॉरी, एंड इसके इंटेस्टाइन में भी एनारोबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, जो इंक्रीज ब्लड शुगर है, वो रिड्यूस हो जाता है. Next, side effect of the metformin or biovinoids. Most important, very important side effect or characteristic side effect of the drug metformin or the biovinoids is lactic acidosis. It is very important or characteristic feature of the side effect of the metformin and weight loss. जितने भी ड्रग्स हमने ऊपर डिस्कस किया है, लाइक सल्फोनाइल यूरिया, मैग्नेटिनाइड्स एनालॉग एंड थायाजोलिडिनोडियोन्स, इनमें क्या हो रहा था साइड इफेक्ट के तौर पे? एज ए साइड इफेक्ट, रिजल्ट ऑफ साइड इफेक्ट, वेट गेन हो रहा था, ओबीज पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था. लेकिन मेटफॉर्मिन जो होता है वो वेट लॉस करवाता है. और अदर साइड इफेक्ट देखें तो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है इम्प्रॉपर यूज पे, मेटालिक टेस्ट हो रहा है, नोचिया वॉमिटिंग कर सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट करता है, विटामिन B12 का डिफिशियंसी करता है, एंड हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज 5 अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स. 5 अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, अब ये क्या करता है, इसका मेजर जो रोल होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को, जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है उसको इनिबिट या फिर रिड्यूस करना बाय इनिबिटिंग एंजाइम अल्फा ग्लूकोसाइडेज. ओके, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दे इनिबिट और रिड्यूस इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाय इनिबिटिंग एंजाइम अल्फा ग्लूकोसाइडेज. इसलिए नाम क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स. ओके, most common drug of this category is acarbose. Okay, so इस फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बिना अकारबोज के जो एरो हैं वो दिखा रहे हैं रेट और मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, ओके, फ्रॉम द इंटेस्टाइन. एंड ऑन द अदर हैंड वी विल सी this arrow show this. What is this arrow showing? Rate or magnitude of absorption of the carbohydrate from the intestine. On the other hand, when a patient or when a person is taking acarbose, see the arrows which is decreased. तो DPP तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं और इनिबिट करते हैं कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द इंटेस्टाइन. Moving to the next, last category is dipeptidyl peptidase inhibitors, DPP4 inhibitors. ये क्या करता है कि ये जो DPP4 inhibitors होते हैं ना, वो DPP4 नाम के एक एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है, जो कि उसके एक्टिवेशन को प्रिवेंट करता है और रोक देता है. इसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है और ग्लूकागोन का सपरेशन हो जाता है. ठीक है, इसे डायग्राम में देखेंगे. देखिए पहले क्या है, यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि किसी भी एक्शन के लिए,
मतलब कि DPP4 के एंजाइम का मेन रोल क्या होता है कि जो इनएक्टिव GLP है ना उसको एक्टिव GLP में इंक्रीज करना, ठीक है, एक्टिव GLP में कन्वर्ट करना। लेकिन मेन स्टार्टिंग चेन ही जो क्या करता है, DPP4 इनिबिटर्स जो होते हैं इनिबिट कर देते हैं DPP4 एंजाइम को, जो कि इनएक्टिव GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को कन्वर्ट ही नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इंसुलिन का सेक्रेशन इंक्रीज होता है और जो क्या करता है कि यूटिलाइज करता है मसल एंड एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज का, ओके। और इसमें एक चीज और दिया है कि अल्फा सेल का सप्रेशन हो जाता है, ग्लूकागोन का सप्रेशन, वही लास्ट में लाइन लिखा हुआ था कि इंसुलिन सेक्रेशन को प्रमोट करता है एंड ग्लूकागोन सप्रेशन को इम्प्रूव करता है। सो concluding the topic, summarizing the topic, today we discussed about the oral hypoglycemic agent and the insulin. Insulin is a parenteral hypoglycemic agent in which four classification, which is rapid acting insulin. Examples are Lispro, lag, rapid insulin, do not lag, L for Lispro, A for Aspart, and G for glulicin. And in short acting, regular is the example. Intermediate acting insulin is the intermediate acting is not particularly hasty, NPH, okay. And long acting insulin, god damn 24 hour is a large long time, okay. So G for the yes, okay. And oral hypoglycemic agents, insulin secretagogues and insulin sensitizer देखे हमने। इंसुलिन सेक्रेटोगॉक्स में सल्फोनाइल यूरिया एंड द मैग्लेटेनाइड एनालॉग्स था, और इंसुलिन सेंसिटाइजर में हमने देखा था कि बायोगोनाइड्स अंदर था, जोलिडिनोडियंस था। एंड जो ड्रग्स जो कि क्या कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर रहे थे और रिड्यूस कर रहे थे इंटेस्टाइन से, उसमें था DPP4 इनिबिटर्स एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, ओके। मेजर साइड इफेक्ट क्या क्या है, सब कुछ दिया है। मेटफॉर्मिन में देखिए बायोगोनाइड्स में क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस, मेटालिक टेस्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स साइड इफेक्ट होता है मेटफॉर्मिन का, ओके। बाकी सारे में वेट गेन है, इसमें वेट लॉस होता है कि जहाँ पे मेंशन नहीं है वेट लॉस होता है, ओके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।